اب اعجاز بٹ کو اپنے بیٹے کا انتظار تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ یہ صبح سویرے کا وقت تھا۔ اعجاز بٹ کو فون آیا کہ ایک موریا پل کے پاس تمہارا بیٹا پڑا ہے، آؤ اور اسے اٹھا لے جاؤ۔ اعجاز بٹ نے گھڑی دیکھی، صبح کے 6 بجے تھے۔ اس نے بیوی کو بتایا کہ اغوا کار ایک موریا پل کے پاس چھوڑ گئے ہیں طلحہ کو۔ پھر اس نے اپنے دوست شہزاد بٹ کو ساتھ لیا اور ایک موریا پل کی طرف گیا۔ انہوں نے دیکھا پل کے آس پاس، مگر کوئی بچہ انہیں نظر نہیں آیا۔ کیا واقعی وہ طلحہ کو چھوڑ گئے تھے؟ کہیں یہ کوئی مذاق تو نہیں تھا؟ اعجاز اپنے دوست شہزاد کے ساتھ ابھی بات چیت کر ہی رہا تھا کہ ایک گارڈ نے ان سے پوچھا کہ میں آپ کو ادھر ادھر چکر لگاتے دیکھ رہا تھا، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ اعجاز بٹ نے بات بدلنے کی کوشش کی، مگر گارڈ کہنے لگا، کہیں کوئی بچہ تو نہیں ڈھونڈ رہے؟ اعجاز بٹ نے ایک لمحہ حیرت سے گارڈ کو دیکھا، اس کے منہ میں الفاظ جیسے رہے ہی نہیں تھے۔ پھر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ گارڈ نے کہا، میرے ساتھ آئیں، یہاں ایک بچہ پڑا ہوا تھا، میں نے اسے اٹھا کر ادھر لٹا دیا، شاید وہی بچہ ہے جسے تم ڈھونڈنے نکلے ہو۔ گارڈ انہیں وہاں لے گیا جہاں اس نے طلحہ کو لٹایا ہوا تھا۔ اعجاز بٹ بجلی کی تیزی سے بڑھا اور اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ شہزاد نے اسے دلاسا دیا اور کہا، خدا نے اپنا فضل کیا ہے۔ دونوں نے گارڈ کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے طلحہ کو لے کر نکل گئے۔ طلحہ اعجاز پولیس اسٹیشن میں ہی بیٹھا تھا جب اس سے یہ بات چیت کی گئی۔ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ طلحہ۔ طلحہ؟ اور آپ کے ابو کا کیا نام ہے؟ اعجاز۔ اعجاز۔ اچھا بیٹا، آپ کو کون لے گیا تھا اپنے ساتھ؟ آپ کو کچھ پتہ ہے، کچھ یاد ہے؟ کون لے گیا تھا آپ کو اپنے ساتھ؟ شیخ جنزیر۔ ان کو آپ جانتے تھے پہلے؟ ان کو دیکھا تھا آپ نے پہلے کبھی؟ نہیں۔ اچھا، کہاں لے گیا تھا وہ آپ کو؟ کچھ یاد ہے آپ کو کہاں لے گئے تھے؟ پہلے شاد باغ لے کے گئے تھے۔ شاد باغ؟ کسی گھر میں لے گئے تھے؟ کہاں لے کے گئے تھے؟ کسی ضائع میں۔ کہاں پہ؟ ضائع میں۔ گاڑی میں لے گئے تھے؟ گاڑی میں ڈال کے کہاں لے گئے تھے گاڑی میں آپ کو؟ یاد کرو۔ کہیں دور لے گئے تھے۔ کہیں دور لے گئے تھے؟ تو آپ نے اس انکل کا چہرہ دیکھا تھا جو آپ کو لے کے جا رہے تھے؟ ہاں جی۔ کتنے انکل تھے وہ؟ کتنے؟ دو تھے؟ ان دونوں کو پہلے دیکھا تھا آپ نے کہیں؟ نہیں۔ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا؟ تو آپ ان کے ساتھ کیوں چلے گئے؟ کیا کہا تھا آپ نے ان کو؟ انہوں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ ہمارے ساتھ آ جاؤ، ابو بلا رہے ہیں، کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا، پتہ ہے کیا انہوں نے کہا تھا؟ تمہارے پاپا نے کہا ہے سیل سے آ لینا اس طرح۔ اچھا، تو پھر آپ ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئے؟ انہوں نے خود بتایا تھا۔ کیسے؟ ایسے اٹھا کے؟ یا کچھ کھانے کو دیا تھا؟ کھانے کا بھی دیا تھا۔ کیا دیا تھا کھانے کو؟ سینڈوچ اور جوس۔ سینڈوچ اور جوس آپ نے کھا لیا تھا؟ پھر کھا کے آپ گاڑی میں بیٹھ گئے؟ پھر گاڑی میں بیٹھ کے آپ کو وہ دور لے گئے؟ ہاں جی۔ اچھا، ابھی آپ اگر ان انکل کی تصویر دیکھیں تو آپ پہچان جاؤ گے؟ یہ والی تصویر دیکھو، یہ دو انکل ہیں، وہ یہی تھے؟ یہ نہیں تھے؟ کوئی اور تھے؟ ہاں جی۔ ان کو غور سے دیکھو، یہ والے انکل تھے وہ؟ اور یہ والے انکل بھی نہیں تھے؟ یہ دونوں نہیں تھے، کوئی اور انکل تھے، ہے نا؟ طلحہ اعجاز نے ان تصاویر میں موجود لوگوں کو جاننے سے انکار کر دیا جو پولیس نے مبینہ طور پر اس کے اغوا کاروں کے طور پر نامزد کیے تھے۔
اگر الطاف عرف تافو پٹھان اور عتیق عرف بلو کن اس کے اغوا کار نہیں تھے تو پھر طلحہ کو کس نے اغوا کیا؟ पुलिस ने इनकाउंटर में अल्ताफ उर्फ ताफू पठान और अतीक उर्फ बिल्लू कन को मार दिया। उनके मुताबिक ये दूसरे जराइम के साथ साथ तलहा के इग़वा में भी मुलव्विस थे। लेकिन हैरत की बात यह है कि जब तलहा यानी उस बच्चे को इन दोनों की तस्वीर दिखाई गई तो उसने पहचानने से इनकार कर दिया। सर, इस बात से तो साफ जाहिर है कि ये दोनों क्रिमिनल्स तो थे, लेकिन तलहा के अगवा से इनका कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन पुलिस ने बड़ी महारत से तलहा का अगवा इनके खाते में डाल दी। जी उमर, पुलिस अक्सर ऐसा ही करती है इन्वेस्टिगेशन से जान छुड़वाने के लिए। सर, खालिद अबू बकर जो डीएसपी कैंट हैं, उनकी ज़ेर निगरानी एक तफ्तीशी टीम बनाई गई थी ताकि इन इश्तिहारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। जब उनसे बात की तो उन्होंने क्या कहा, देखिए ज़रा। शेख जहांगीर, ज़ीशान उर्फ शानी और अतीक वगैरह ने जो दीगर कत्लों के इश्तिहारी थे, वो अपनी उस इश्तिहारपन में, मफरूरी में वो फंड रेजिंग करना चाहते थे। इस बिना पे उन्होंने इस छोटे से बच्चे को टारगेट किया। वालिद इसका स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था तो उन्होंने इसको बाहर से अगवा किया। अगवा करने के बाद 6 दिन उन्होंने अपने पास रखा। वालदैन के साथ बारगेनिंग होती रही, वालदैन ने तवान अदा कर दिया और बच्चा उन्होंने वापस ले लिया। जब ये बात हमारे सीनियर अफसरान के नोटिस में आई, उन्होंने कहा कि इस तरह की वारदातें मज़ीद बच्चों की होगी। 5 साल का मासूम बच्चा है, माँ बाप में खौफ और आस है, तो आप इस केस पे काम करें। ये केस हमें ट्रांसफ़र हो गया, जिस पर हमने इश्तिहारियों के जो साथी थे, जो बज़ाते खुद इश्तिहारी नहीं थे, जहांगीर जिस तरह ये दीगर किसी कत्लों में इश्तिहारी नहीं था, लेकिन इसने किडनैपिंग में इनके साथ था, इसका हमने जब गवाह इकट्ठे किए तो ये हमारे सामने आया कि जहांगीर को अगर अरेस्ट करें तो इससे इस केस की जो होती है वो सुलझ सकती है। तो हमने सबसे पहले जहांगीर को यहाँ से स्टेशन से हमने गिरफ्तार। डीएसपी अबू बकर शेख, उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि ये दोनों मकतूल पहले से ही इश्तिहारी हैं और इंस्पेक्टर सजवार तारिक जो इस टीम के अहम रुकन थे, उन्होंने भी कुछ इसी किस्म के ख्यालात का इजहार किया। जी, ये हमने मुद्दई के जो अगवा हुआ था तावान के लिए जो बच्चा, उसके वालिद से मिलके हमने एजाज भट्ट से उनका मुलज़मन जो जिस नंबरों से कॉलें करते थे उनका डिटेल निकलवाई। डिटेल से फिर हमने उसमें उस काम शुरू किया। तो उसमें अतीक और बिल्लू जो एक मुलज़म ऐसा था जो इनके घर में इनका पहले नौकर रह चुका है, इनकी गाड़ी शाड़ी वगैरह धोता था, उसके नंबर बार बार आ रहे थे। तो उसको हमने ट्रेस किया तो उससे हमें पता चला कि अगर इनसे पकड़ा जाए तो ये क्लियर हो जाए। तो उस पर हमने कोशिश की तो उसको थोड़े दिनों बाद वो पुलिस इनकाउंटर में मारा गया। उसके बाद हमने उसके नंबरों से उसके दोस्त अहबाब थे और उसके अजीज़, उनसे इंटरोगेट शुरू किए। तो उसमें हमें एक पता चला कि ये शेख जहांगीर एक ऐसा आदमी है जो इनसे मिलता था, ये इनके साथ होता था। जब हमने इसे शेख जहांगीर को स्टेशन से पकड़ा, ये कराची भाग रहा था, इसे ऑलरेडी पता चल चुका था कि मेरे पीछे पुलिस है। तो इसे पकड़ा तो इसने उसके बाद इंटरोगेट किया तो इसने इंकशाफ किया। 6 दिन बच्चा अपने पास रखा और पैसे लेने के अगले दिन इन्होंने दिल्ली दरवाजे के पास बच्चे को छोड़ दिया और उनको घर फ़ोन कर दिया कि जी आपका बच्चा शहरी के टाइम कि बच्चा आपका फ़लाँ पार्क में जाकर ले गए। जो मुलज़मान मारे गए हैं ये जी इन्होंने काफ़ी मठों के इश्तिहारी थे वो ऑलरेडी। इनमें एक नवीद सब इंस्पेक्टर है, उसको इन्होंने बदामी बाग पुल के ऊपर मारा और उसके अलावा काफ़ी कत्ल थे उन पर। और ये इस्लामपुरे के इलाके में CIA गाज़ियाबाद ने इनकाउंटर किया है। लेकिन जाहिर है कि जब तलहा ने ताफू पठान और बिल्लू कन को शनाख्त नहीं किया तो हम कैसे कह सकते हैं कि उस बच्चे का अगवा इन दोनों ने ही किया? ये तो पुलिस का मौका है। सर, पुलिस ऐसा क्यों कह रही है? पुलिस ऐसा क्यों कह रही है अंबर? जाहिर है केस की इन्वेस्टिगेशन ना करने के लिए उन्होंने इस केस का मामला भी उन्हीं दोनों पर डाल दिया। लेकिन हैरत की बात यह है कि वो शख्स जिसका नाम शेख जहांगीर है, वो क्यों इसरार कर रहा है कि ताफू पठान और बिल्लू खान इसमें मुलव्विस थे? सर, शेख जहांगीर नामी इस शख्स को 20 दिन पहले पुलिस ने पकड़ा। पुलिस के मुताबिक ये अगवा का शरीक मुलजिम है और उनके बकौल तलहा एजाज ने उसको शनाख्त भी किया अपने अगवाकार के तौर पर। क्राइम रिपोर्टर गालिब ने उससे बातचीत की है, वो हम सुन लेते हैं।
जहांगीर बताना आपने तलहा को किसके कहने पे और कब और कैसे अगवा किया? जी वो उसका एक घर में काम करता था, बिल्लू पटी नामी शख्स। तो वो मुझे कहता जी मेरे साथ चलो वहाँ पे। वो मुझे अपने साथ ले गया। उसने तलहा को बुलाया, तलहा उसको जानता था, तो उसने तलहा को बुला के मोटरसाइकिल पर बैठा दिया। उसने मुझे कहा पीछे से पकड़ लो तुम। मैं पीछे से पकड़ के बैठ गया, तो मुझे शादबाग तक वो अपने साथ ले गया, शादबाग तक। उसके बाद आप उसको कहाँ लेके गए तलहा को? फिर उन्होंने अपनी गाड़ी पे बैठाया, तो वो उसको आगे ले गए। फिर उसके बाद 3 और 4 दिन बाद उन्होंने फिर मेरे साथ रब्ता किया, जी हमने कहीं जाना है, हमारे साथ चलो। फिर जब वो फ़ोन करने के लिए जाते थे, फिर मुझे अपने साथ लेके जाते थे। तो अब वो कहाँ हैं जो दूसरे मुल्ज़िमान जो आपके साथ थे, वो इस वक्त कहाँ हैं, कौन सी जगह? कुछ बंदे तो मफरूर हो चुके हैं, और जो कुछ लोग जो उनसे है ना, वो पुलिस ना इनकाउंटर पे मारे गए। तो आपने उनसे पैसे कौन सी जगह पे लिए थे? जरा तफसीली ज़रा बात करना कि आपने पैसे कौन सी जगह पे, कैसे उन्हें फ़ोन करते थे, कौन सी जगह पे आपने? असल पे जो बंदा हुआ ना, उसने पैसे मंगवाए थे ये ना उमर हॉस्पिटल के आगे से। तो उसके बाद ये पैसे उसने मुझे पकड़ा दिए थे, या ये हमारी इमानत है, ये तुम रख लो। मुझे नहीं पता था ये पैसे हैं, इसके ऊपर कपड़े वगैरह थे। तो जब पुलिस वाले आए तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास बैग है, तो वो मुझे पकड़ाओ। बैग में से पैसे और कुछ ये चीज़ें शामिल निकली। नहीं, आप तो 2 दिन तक तलहा के घर वालों को फ़ोन करते रहे और मुख्तलिफ लोकेशंस बताते रहे, तो हर दफ़ा वो आपको साथ लेके जाते थे? जी हम मुझे साथ लेके जाते थे। क्या कहते थे आपको? आप फ़ोन करते थे या दूसरे मुल्ज़िमान फ़ोन करते थे? मुझे भी कहते थे और लोगों को भी कहते थे तुम फ़ोन करो। आपके साथ और कौन कौन थे, उनके नाम ज़रा मुझे सारों को बता दें। मैं था, शानी पट्टी था, बिल्लू पट्टी था, और हसन था। वो इन दोनों के साथ ताल्लुक का दावा तो करता है, लेकिन सवाल यह है कि पुलिस ने इसे गिरफ्तार कहां से किया और इसके पास तावान की रकम क्यों रखवाई गई? सर, तावान की रकम का शेख जहांगीर के पास रखवाया जाना मेरे ख्याल से पुलिस की लीड है, हकीकत से इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। जी सर, मैं तारक की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। पुलिस ने ऐसा ही किया है, और पुलिस ने मेरे ख्याल से शेख जहांगीर को वादा माफ गवाह बना लिया है। दूसरा ये कि शेख जहांगीर को तो पकड़ा ही 20 दिन पहले गया था, तो ये सारे पैसे इसके पास क्यों रखे हुए थे? इसी बात से ऐसा महसूस होता है कि जैसे यही इस अगवा का मरकज़ी मुल्ज़िम है, वरना तावान की रकम मुकम्मल तौर पर इसके पास होना समझ से बालत है। सर, पुलिस कहती है कि शेख जहांगीर कराची भागने की कोशिश कर रहा था। इंतहाई ड्रामाई अंदाज में उसे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया, जबकि हमारा ख्याल ये है कि उसे स्टेशन से नहीं बल्कि उसके घर से गिरफ्तार किया गया था। एक बात और, एजाज को कॉल करके तावान का तकाजा करने वाला शख्स एजाज से हैरत अंगेज तौर पर बहुत ही लाइट से अंदाज में बात किया करता था। वो उसे बट कह के मुखातिब करता था। ये बात एजाज बट ने मुझे खुद बताई। देखिए, उसने फ़ोन किया बट, वो यही कहता था बट पैसे दे दे, बट है गल। उन्हें कहा बट तेरा पुत्र दिल्ली एक मुड़े पुल के बाहर वो जिथे गड्डियां स्टैंड है ना, उत्थे पे चुकला उत्थे आ गया से। बहरहाल ये केस काफी उलझा हुआ था। मेरे ख्याल में अतीक उर्फ बिल्लू और ताफू पठान जो इनकाउंटर में मारे गए हैं, उनका इस अगवा के केस से ताल्लुक नहीं निकलता। उनके दूसरे जराइम अपनी जगह, जिन पर अभी हम बहस नहीं करना चाहते, लेकिन इस केस से उनका ताल्लुक मशकूक नजर आता है। और इस केस का मरकजी मुल्जिम मेरे ख्याल में शेख जहांगीर ही है। लेकिन बहरहाल ये अपनी नौइयत का एक अनोखा अगवा का केस है, जिसमें अगवा शुदा बच्चा चंद ही दिनों के बाद घर वापस आ गया और तावान के लिए दी जाने वाली रकम 7 महीने बाद। हो ना हो, अगवाकारों के ताल्लुकात बहुत ऊपर तक थे और अभी भी। अगर आपके साथ हुई है किसी भी मामले में कोई ज्यादती या नाइंसाफी और आप चाहते हैं कि आपके मामले की तफ्तीश करे टीम SID, तो हमें बताइए, हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है sid@sama.tv या हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें, facebook.com/sama investigation department। मैं हूं मूसा हैदर और ये है SID। याद रखिए, जब बात होगी जुर्म की, तफ्तीश करेगी टीम SID।